Hello everyone, my name is Akanksha Ranjan and I have qualified UGC NET examination in 2022 and I have JRF with me, and today I am going to discuss about family law. And under family law there are various theories, there are various religion which is covered, and there is a list of bare act that we need to cover under that particular unit. So in this video what we are going to do is we are taking the religion that is Hindu, and under Hindu, we are taking Hindu Marriage Act, under which we will be discussing specifically about the marriages, the dissolution of marriage, and divorce theories that is given under this particular act. Okay? So now let's start with the topics. So as per the syllabus, these are the two topics which is given under the syllabus, which we are going to do in this video. First of all, this act is applicable on whom? Enacted on 18th May 1955. It is applicable on Hindus because it is Hindu Marriage Act. But apart from Hindus, there are various other sects which are mentioned under the act on which also this act is applicable. Like it's given over here that Viras, Shiva, Lingayat, okay, and Brahmo, Prarthana, Samaj, Buddhist, Jain, Sikh, by religion, these are included in this. Means on Jain, Sikh also this act is applicable, and on whom it is not applicable, it is given over here that on Muslim, Christian, and Parsis, it is not applicable, and you. And apart from that, there are two more categories given under the act on whom this act is applicable. So it is given specifically that all the child, be it legitimate or illegitimate, if both the parents were Hindu, Buddha, Jain, Sikh by religion, then the child will be governed under the act. Or if the child, legitimate or illegitimate, one of the parent belong to that particular religion, Hindu, Sikh, Buddha, and the upbringing has been done as per that religion, then in that case also the child will be governed under this particular act. Now, section 3 talks about the definition. Definition clause, section 3, which is a little bit different because in all the act, mostly section 2 deals with the definition. So in this act, section 3 is definition. In this, these are the 3-4 definition which comes very frequently in different competitive examination. Okay? So this is important. Now, and this is a bit confusing also, that is why it comes in examinations. So basically, C and D talks about full blood, half blood, and uterine blood. What is the difference? C talks about full blood. Full blood means uh, you two belong to the same mother and father, right? Half blood, when you two people are related to each other by common ancestor but different wives. ठीक है? So आपके फादर वाले साइड पे सेम एंसेस्टर है जिसके आप लीनिएज हो, बट वाइफ्स डिफरेंट थी. सो यू टू आर रिलेटेड टू ईच अदर विद सेम फादर बट डिफरेंट मदर. ऐसे आप समझ सकते हो. And if the mother is same and the fathers are different, different husbands were there and the same mother was there, then it becomes uterine blood. That is the basic difference. Different wife in the case of half blood, different husband in the case of uterine blood. You two are related to each other. C and D. Then Sapinda relationship and prohibited relationship. These two are the relationship in which you cannot marry under the act. It is provided that it is not allowed to get married. Now, what it is, the definition is given under this F clause 1, Sapinda relationship. Now, this also comes very frequently in the examination. So, what is Sapinda relationship? It is decided that up to third generation from the mother side and up to fifth generation we are going backwards. So in the backward side, 3 जनरेशन मदर की साइड से पुराने जनरेशन तक आप शादी नहीं कर सकते बिकॉज वो सपिंदा रिलेशनशिप माना जाता है. और 5 जनरेशन फ्रॉम द फादर साइड पुराने टाइम तक आपका सपिंदा रिलेशनशिप माना जाता है, उसमें शादी आप नहीं कर सकते हो. ये चेंज हुआ था. पहले ये जो 3 और 5 जनरेशन है, ये याद रखना. पहले ये 5 और 7 था, मतलब पहले 5 फ्रॉम द मदर साइड एंड 7 फ्रॉम द फादर साइड था. ये चेंज होके थर्ड एंड फिफ्थ जनरेशन तक चला गया था. दैट इज सपिंदा रिलेशनशिप. Then prohibited relationship under G.
एफ में सपिंदा है, जी में प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड क्या होता है, ये भी अलाउड नहीं है। अब अलाउड नहीं है में कुछ कैटेगरीज हैं, आप अगर क्लॉज पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, मैंने उसको यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि वो क्या होता है। तो पहला, ब्रदर सिस्टर प्रोहिबिटेड। सेकंड, अंकल एंड नीस प्रोहिबिटेड। आंट एंड नेफ्यू प्रोहिबिटेड। ये तीन कैटेगरीज याद रखना। और चौथी कैटेगरीज में आता है भाई भाई, भाई बहन और बहन बहन। जो तीन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, इन तीनों रिलेशन के बच्चे जो हैं उनका भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, उनकी भी शादी नहीं हो सकती। तो ये सपिंदा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का डेफिनेशन हो गया। क्लियर। अब आ जाते हैं सेक्शन 5 पे, विच टॉक्स अबाउट द कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज। सो हिंदू मैरिज के लिए पांच कंडीशन है, पांच क्लॉजेस में दिए हैं, याद रखना। पहला, मोनोगमी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब अगर उस किसी इंसान का पहले से लिविंग स्पाउस है एट द टाइम ऑफ मैरिज तो वो वैलिड नहीं माना जाता है, पहला कंडीशन। दूसरा, कंसेंट, कंसेंट होना चाहिए दोनों पार्टी का, और दोनों पार्टी केपेबल होनी चाहिए कंसेंट दे पाने के लिए। तो मतलब अगर अनसाउंड माइंड का है वो पार्टी तो उसको हम वैलिड कंसेंट नहीं मानते हैं। तो कंसेंट होना जरूरी है, मोनोगैमी होना जरूरी है, एज होना जरूरी है। थर्ड, एज, जो लीगल एज है वहां तक पहुंचा हुआ होना चाहिए, तभी वो वैलिड मैरिज कही जाएगी। फोर्थ, प्रोहिबिटेड। और फिफ्थ, सपिंदा। प्रोहिबिटेड और सपिंदा ये दोनों नहीं होने चाहिए। ये पांच कंडीशंस है मैरिज के। लास्ट के फोर्थ और फिफ्थ अलाउड नहीं है, और बाकी के पहले के तीनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, तभी उसको हम वैलिड मैरिज कहते हैं। ठीक है, सेक्शन 5 में दिया हुआ है। सेक्शन 7 इज अबाउट सेरेमनी विच आर इम्पोर्टेंट फॉर अ वैलिड मैरिज। ठीक है, तो मतलब हिंदू, ये हम हिंदू की बात करें तो हिंदू में इन जनरल हमको पता है कि 7 फेरे होते हैं, राइट। सो इन दिस केस इट इज गिवन ओवर हियर दैट वॉट एवर सेरेमनी इज गिवन इन दैट पर्टिकुलर रिलीजन, दैट सेरेमनी हैज टू बी परफॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल सप्तपति जो 7 स्टेप्स होते हैं, या फिर कोई और कस्टमरी अगर आपके उसमें है, तो उसके हिसाब से अगर मैरिज होता है तो वो बाइंडिंग होता है। ठीक है। एट्थ में रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है जो कि अब कंपलसरी है। तो मैरिज की जो रजिस्ट्रेशन होती है उसका एक प्रोसेस होता है जो हर स्टेट अपनी अपनी बनाती है, और अथॉरिटीज होते हैं जो रजिस्टर करते हैं, और ये लीगल प्रूफ होता है कि आपकी शादी हुई है। सेक्शन 8 में दिया है, याद रखना। सेक्शन 5, 7, 8। अब हम आ जाते हैं 9, 10 पे। ठीक है। 9 इज अबाउट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट। 10 इज अबाउट जुडिशियल सेपरेशन, याद रखना। 9 इज अबाउट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट। इसका मतलब होता है कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं दोनों कोहैबिट करेंगे साथ में। इसके लिए अगर आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो, कोई एक पार्टी कहता है कि नहीं मैं वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता या मैं हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, विड्रॉ करता है, तो उस केस में जो दूसरा पार्टी है वो कोर्ट में जा सकता है कि हमें ऑर्डर दो उस इंसान को कि मेरे साथ ही रहे, क्योंकि कोहैबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कंज्यूगल राइट है, क्योंकि हमारी शादी हुई है। ठीक है। तो ये जो राइट होता है ये कंज्यूगल राइट होता है। ये 9 में इसकी बात की गई है कि आप बिना रीजनेबल जस्टिफिकेशन दिए हुए डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, कंज्यूगल राइट को। यहाँ पे अगर अग्रीव्ड पार्टी चाहे तो पिटिशन फाइल कर सकता है कोर्ट में, और कोर्ट को अगर लगता है कि जरूरी है ऑर्डर देना टू लाइक कोहैबिट टुगेदर, तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है अंडर सेक्शन 9, ये दिया हुआ है। ये दो केसेस हैं, सरोज रानी 1984 जिसमें कहा था कि ये वैलिड है, मतलब ये जो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या था कि ये जो पूरा का पूरा राइट है वेदर ये वैलिड है कि नहीं है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी को जबरदस्ती कह रहे हो कि आपको इसके साथ रहना पड़ेगा, इसका मतलब है कि आप आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहे हो, कि आप उसको उसकी लाइफ उसके हिसाब से नहीं जीने दे रहे हो। तो टी सरिता में कहा था कि ये वायलेट करता है आर्टिकल 21 को, जबकि सरोज रानी में फिर कह दिया था कि नहीं इट्स वैलिड 1984 में। तो ये दो नाम है केस के, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये मेंशन हुए हैं कई बार। अब सेक्शन 10 क्या है। सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन, जैसा कि मैंने कहा कि 9 इज अबाउट साथ में रहना, 10 इज अबाउट सेपरेट रहना। अब जुडिशियल सेपरेशन का भी ऑर्डर दिया जा सकता है। अब जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में डिफरेंस है, ठीक है। डिवोर्स, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि आप दोनों का, अब आप दोनों एक साथ नहीं हो, मतलब आपकी शादी खत्म हो चुकी है, स्थगित कर दी गई है, एंड हो चुका है शादी का। जुडिशियल सेपरेशन में जो मैरिज का बॉन्ड है वो अभी भी है, ठीक है, लीगली यू आर स्टिल मैरिड, जस्ट आप सेपरेटली रह रहे हो। ठीक है। अब आप ये सेपरेटली रहोगे इसका ऑर्डर कोर्ट देती है अंडर सर्टेन कंडीशंस।
ठीक है, ये आप समझ सकते हो कि डिवोर्स के पहले वाला स्टेज है, अगर आपने कभी सुना होगा इसके बारे में कि दे आर सेपरेटेड, दे आर नॉट डिवोर्स बट दे आर सेपरेटेड। तो ये कोर्ट जो ऑर्डर देती है लीगल सेपरेशन का बिना मैरिज को डिसॉल्व किए हुए, उसमें स्पाउसेस पे ये कंजुगल राइट, साथ में रहना, ये सब अलाउड, ये सब जरूरी नहीं होता है, ये सब नेसेसरी नहीं होता है। ठीक है, इसके जो ग्राउंड्स हैं वो सेम होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के, जो हम सेक्शन 13 में पढ़ेंगे, वही वाले सेम ग्राउंड सेपरेशन के लिए भी हो सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि वो ग्राउंड्स कौन से होते हैं। ठीक है, सेक्शन 10 हो गया। अब 11 और 12, 11 इज अबाउट वॉइड मैरिज, 12 इज अबाउट वॉइडेबल मैरिज। अब जो हमने वैलिड मैरिज के 5 पॉइंट्स देखे थे, मोनागमी, कंसेंट, एज, प्रोहिबिटेड एंड सपेंदा, ये पांचों ही कंडीशन जरूरी तो है, लेकिन अगर ये नहीं होते हैं तो क्या वो मैरिज मानी ही नहीं जाएगी या फिर वो मानी जाएगी और उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 10 और 11 और 12 सेक्शन में दिया हुआ है कि कौन कौन से वाले कंडीशन में मैरिज को हम वॉइड बोलेंगे। वॉइड का मतलब आपको पता है कि वॉइड एब इनिशियो, हमेशा से वो मैरिज थी ही नहीं, उसको हम बिल्कुल जीरो नल कर देंगे मैरिज को, कि ये मैरिज को हम मानेंगे ही नहीं कि कभी हुई थी, क्योंकि ये कंडीशन ऐसा है। और वॉइडेबल मतलब कि मैरिज को हम वैसे तो वैलिड मानेंगे, बट अगर कोई एक पार्टी चाहती है कि इसको हम इनवैलिडेट कर दें तो हम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉइड मैरिज की ये 3 पॉइंट्स है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला, अगर बाइगैमी हो रही है, मतलब मोनोगमी अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो उस केस में उसको हम वॉइड मानेंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई दूसरा इंसान शादी कर रहा है, दूसरे इंसान से अगर वो शादी कर रहा है वाइल लिविंग स्पाउस, तो वो जो दूसरी शादी है उसको फ्रॉम द बिगनिंग हम वॉइड मान लेंगे। प्रोहिबिटेड और सपेंदा रिलेशनशिप के अंदर भी अगर शादी होती है, क्योंकि ये अलाउड नहीं है, तो इसमें भी अगर शादी होती है तो उसको हम वॉइड मैरिज कहते हैं। सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज के बारे में है। यहाँ पे जब तक उसको अनल नहीं किया जाता है शादी को, तब तक वो शादी वैलिड मानी जाती है। पिटिशन जो है एक इंसान की तरफ से, वो 1 साल के अंदर फाइल की जानी चाहिए, ये क्लॉज में दिया हुआ है। ये कुछ कंडीशन है, जिस कंडीशन में जैसे कि अगर कंसेंट का इशू है, मेंटल डिसऑर्डर है, अनसाउंड है, कैपेसिटी नहीं है उसकी, तो जब दूसरा इंसान चाहे कि नहीं ये तो उसकी कैपेसिटी नहीं थी या मेरी कैपेसिटी नहीं थी इसलिए हमने कंसेंट दिया, वो वैलिड कंसेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे इसको हम वॉइडेबल कर सकते हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं हम थ्योरी ऑफ डिवोर्स पे। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि मैरिज के वैलिड कंडीशंस क्या होते हैं, वॉइड मैरिज कब होती है, वॉइडेबल मैरिज कब होती है, कंज्यूगल राइट का रेस्टिट्यूशन का क्या सेक्शन है, और जुडिशियल सेपरेशन क्या चीज होती है। क्लियर। अब हम आते हैं डिवोर्स पे। डिवोर्स की भी जो क्लॉजेस हैं सेक्शन 13 के अंदर, वो बहुत सारे हैं और वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार, तो उसको मैं एकदम ब्रेक डाउन करके यहाँ पे पॉइंट्स में बनाए हुए हैं ताकि आपको याद करने के लिए आसानी रहे। अब थ्योरी ऑफ डिवोर्स के अंदर तीन तो मेन थ्योरी है। ठीक है, ये पूरा हम सेक्शन 13 के अंदर ही कर रहे हैं बट डिफरेंट क्लॉजेस है। ठीक है, तीन तो थ्योरी हैं जो आपको याद रखना है, एक फॉल्ट थ्योरी है, एक ब्रेकडाउन थ्योरी है और एक कंसेंट थ्योरी है। इसके अलावा दो और प्रोविजंस हैं। एक, कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं जो कि एक्सक्लूसिवली वाइफ के लिए है, मतलब वाइफ उन ग्राउंड्स पे डिवोर्स का क्लेम कर सकती है, और कुछ ग्राउंड्स हैं फॉर जुडिशियल सेपरेशन जैसा अल्टरनेटिव रिलीफ उन कंडीशंस में दिया जा सकता है। ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं। फॉल्ट थ्योरी जो है सेक्शन 13(1) में दिया हुआ है। फॉल्ट का मतलब होता है कि किसी एक की गलती, तो दो लोगों की शादी हुई है, उसमें से अगर किसी एक की गलती पाई जाती है तो दूसरा इंसान फाइल करेगा डिवोर्स ऑन दैट ग्राउंड की दूसरे पार्टी से गलती हुई है। दिस इज फॉल्ट थ्योरी, मतलब फॉल्ट थ्योरी का ये होता है। ये कुछ कंडीशंस हैं जो लिस्टेड है अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1, जिसके अंडर फॉल्ट थ्योरी के बेसिस पे एक इंसान डिवोर्स मांग सकता है। एडल्ट्री, क्रूएलिटी, डिजर्टेशन फॉर 2 इयर्स, छोड़ दिया, नहीं था वो अवेलेबल, कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, रिलीजन बदल दिया, अनसाउंड पाया गया, लेप्रोसी डिजीज, वेनरल डिजीज, ये सारे कंडीशंस उसके मेडिकल हैं, उसने रिनाउंस कर दिया, दुनिया ही छोड़ दी सारी की सारी, तो फिर मैं बोल सकती हूँ कि भैया उसने दुनिया छोड़ दी है तो अभी मैं इसका, मुझे डिवोर्स चाहिए इस बेसिस पे, क्योंकि मैं क्या करूँ इसके साथ अभी। नॉट हर्ड ऑफ इन लास्ट 7 ईयर्स, 7 साल से वो गायब है इंसान, और 7 साल से किसी ने उसके बारे में नहीं सुना है, तो जैसे कि एविडेंस एक्ट में ही लिखा हुआ है कि तब मान लिया जाता है कि वो नहीं है, तो यहाँ पे भी उसी की बेसिस पे आप डिवोर्स फाइल कर सकते हो।
फिर होता है ब्रेक डाउन थ्योरी। इसका मतलब होता है कि मैरिज इतनी बुरी तरीके से खत्म हो चुकी है, अंदर से उसमें कुछ बचा ही नहीं है मैरिज में, तो अब उसको डिवोर्स चाहिए, क्योंकि देर इज नो पॉसिबिलिटी एट ऑल कि ये शादी चल सके आगे। तो इसका जो ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज की जो थ्योरी है वो 13 क्लॉज 1 ए में दिया हुआ है, ठीक है। ये ऐड हुआ था बाद में 1964 में, क्लॉज 1 ए, ठीक है। फॉल्ट थ्योरी क्लॉज 1 में है, और ब्रेकडाउन थ्योरी क्लॉज 1 ए में है, ये याद रखना। इसका अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि देर इज नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर द पासिंग ऑफ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन। अब जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर हुआ था, बट 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन दोनों साथ में रहने के लिए तैयार नहीं है। तो हम, मतलब ये है कि दोनों बिल्कुल रहना नहीं चाहते हैं, ब्रेकडाउन हो चुकी है शादी की, और इसको हम डिवोर्स दे सकते हैं। दूसरा, देयर हैज बीन नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट बिटवीन द पार्टीज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर अपवर्ड आफ्टर पासिंग ऑफ द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। मतलब जो हमने कंजुगल राइट का पढ़ा था कि डिग्री पास कर सकती है कोर्ट, तो अगर कोर्ट ने ऐसी डिग्री पास कर दी है, फिर भी दोनों लोग 1 साल से ज्यादा हो गया और साथ में नहीं रह रहे हैं, इसका मतलब है कि ब्रेकडाउन हो चुकी है शादी की, और इस बेसिस पे डिवोर्स दिया जा सकता है। क्लियर? तो ये हो गया ब्रेकडाउन थ्योरी। अब सेक्शन 13 बी, अभी तक 1 और 1 ए देखा, अब 13 बी में म्यूचुअल कंसेंट से दिया हुआ है। मतलब दोनों पार्टीज अगर दोनों अपनी आपसी सहमति से चाहती हैं कि डिवोर्स हो, तो वो म्यूचुअल कंसेंट के अंदर अप्लाई कर सकती हैं। इसके भी कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि दोनों सेपरेटली रह रहे हैं 1 साल या उससे ज्यादा के लिए, ठीक है, और ये कंडीशन है। दूसरा, ऑन द मोशन ऑफ द बोथ द पार्टीज not earlier than 6 months after the date of presentation of petition and not later than 18 months। यहाँ पे इसका मतलब है कि आपने पिटिशन फाइल कर दिया, बट 6 महीने तक कोर्ट रुकेगी, क्योंकि ये चेक करने के लिए, इट्स लाइक कूलिंग पीरियड, ये चेक करने के लिए कि सही में मतलब जरूरत है क्या इसको हियरिंग करने की या डिवोर्स की आगे, या फिर बहुत जल्दबाजी में लोगों ने बस अचानक से डिसाइड कर लिया है कि डिवोर्स लेना है। तो 6 महीने आपने पिटिशन फाइल कर दिया, सॉरी, 6 महीने के बाद कोर्ट उस पे आगे कार्रवाई करेगी, शुरू करेगी, सुनेगी, इंक्वायरी करेगी, और फिर डिसाइड करेगी कि डिवोर्स देना है कि नहीं। 18 महीने से लेकिन पहले होना चाहिए, ठीक है। 6 महीने के बाद 18 महीने के पहले कोर्ट ये डिसाइड करेगी। ये एक केस है अमनदीप वर्सेस हरविंदर कौर, जो कि बहुत लैंडमार्क केस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ करने के भी कुछ कंडीशंस बताए थे। मतलब ये जो कूलिंग पीरियड पहले बात कर रहे थे कि थोड़ा टाइम देते हैं ताकि अगर जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया है तो वो पहले ही रूल आउट हो जाए, तो इसमें इस केस में ये बोला था कि कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ पे देयर इज नो चांस एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कूलिंग पीरियड ऑल्सो बिकॉज द सिचुएशन इज सच। तो उस केस में इस कूलिंग पीरियड की भी जरूरत नहीं है, और डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से जल्दी भी दिया जा सकता है, टू फास्ट ट्रैक द प्रोसेस इन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, तो ये म्यूचुअल कंसेंट होता है। फिर आता है एक्सक्लूसिव ग्राउंड फॉर वाइफ। तो मैंने कहा था कि कुछ ग्राउंड है जिसके बेसिस पे वाइफ के लिए स्पेशल ग्राउंड दिए हुए हैं कि वो डिवोर्स ले सकती है। 13 क्लॉज 2 में दिया हुआ है। ये 4 कंडीशंस है। पहला, पता चलता है कि दूसरी वाइफ उसकी लिविंग है ऑलरेडी, तो वाइफ कह सकती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। दूसरा, हस्बैंड कन्विक्ट हुआ है इन कुछ चीजों के लिए, रेप, सोडोमी एंड बेस्टियलिटी। तीसरा, दोनों कोहैबिट नहीं कर रहे हैं, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, ठीक है, तो उस केस में भी वाइफ कह सकती है। और दूसरा, वाइफ 15 साल से ऊपर हो गई है, 15 साल से पहले शादी हो गई थी उसकी, ठीक है, बट 15 साल के ऊपर हो गई है और 18 साल से कम है, और उस बीच में वो अगर डिसाइड करती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए बिकॉज मैं तो बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई थी, तो उस केस में भी वाइफ डिवोर्स मांग सकती है। 13 ए इज अबाउट ऑल्टरनेटिव रिलीफ लाइक जुडिशियल सेपरेशन। तो अगर in any proceeding under the act on a petition of dissolution of marriage by a decree of divorce, except on the ground of conversion, renouncement, and not heard of wala condition, the court may consider the circumstance and grant the decree of judicial separation. So मैरिज के डिवोर्स के लिए अगर पिटिशन फाइल होता है और ये तीनों कंडीशन नहीं है, और द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स इज नॉट दीज थ्री कंडीशन, इन दैट केस कोर्ट कैन कंसिडर गिविंग द डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन
not divorce, so that they can live separately, and then later on if it is still necessary कि divorce ही लेना है, तब वो later on decide कर सकता है। तो जुडिशियल सेपरेशन का अंडर सेक्शन 10 जो पॉइंट था वो वाला, कोर्ट ऑल्टरनेटिव रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है, इवन दो पार्टी आई तो डिवोर्स के लिए थी, लेकिन कोर्ट उनको जुडिशियल सेपरेशन दे सकता है अंडर सेक्शन 13A। तो ये हमारा ऊपर ऊपर से हमने पूरा कवर कर लिया है मैरिज एंड द थियोरी ऑफ डिवोर्स अंडर हिंदू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये सेम चीज अबाउट मैरिज एंड डिवोर्स मुस्लिम्स का देख लेंगे, ताकि हमें ये दोनों बिल्कुल क्लियर रहे कि मैरिज एंड डिवोर्स इन हिंदू एंड मुस्लिम्स कैसे होता है, बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है फॉर एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ऐसे कंफ्यूजिंग आते हैं, क्लॉजेस मेंशन करेंगे या फिर ग्राउंड्स मेंशन करेंगे। तो उसके लिए आई होप कि ये हेल्पफुल रहे। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल सी यू ऑल विथ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस, and all the very best for your preparation. And yes, please like, share, and subscribe, because this is YouTube, and I also need some motivation. So yeah, thank you so much. Bye bye.